Hello, student. How are you all? Hope everyone is enjoying their physics studies and physics lessons. Okay, so right now we are starting the second part of this chapter that is related to electric charges and electrical field. This is the part two. Remember that part one is already uploaded there. Those students who are not yet aware of that, so they can collect that information there, and we are proceeding from that topic. Okay. So IIT, JEE, NEET, all state board student can get benefit of this particular lesson. This is about the electrical charges and electrical field. And let me tell you, students, in this section we are going to cover at least two topics. One is the Coulomb's law, which is very important for all the electricity topics, Coulomb's law. And the second part we will cover that is about the dielectric study, dielectric constant and relative permittivity. All right. So dielectric study or dielectric constant is going to be the second part we are going to cover today. होप सब लोग जुड़ चुके हैं जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो प्लीज कीप शेयरिंग दैट इन्फॉर्मेशन इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर एवरीवन सब लोगों को फायदा होगा आप इसके साथ अगर जुड़ेंगे so let's start our study and we are starting from Coulomb's law of electric force. So student, first of all I would like to introduce something about it. This is far back in 1785. all right, काफी पुरानी बात है एंड एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे बड़े मशहूर फ्रेंच फिजिसिस्ट थे and his name was Coulomb. All right. So French physicist Coulomb was responsible for that study, and his name was Charles Coulomb. Right. Charles Coulomb. उनकी स्टडी का ये पॉइंट है जो कूलम्स लॉ हमको हासिल हुआ. कूलम्स लॉ एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट अबाउट दैट लॉ? ये लॉ किस चीज के बारे में है? सो रिमेंबर स्टूडेंट, एज यू नो दैट जब कोई भी दो चार्ज मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल एक Q1 चार्ज यहाँ मौजूद है और एक Q2 चार्ज यहाँ मौजूद है, इन दोनों चार्ज के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन अवेलेबल है. That interaction depends on their type. For example, one of them is the positive and another is the negative, so there will be attraction and sometime it will be repulsion, whatever is kind of the force. इसी फोर्स की स्टडी कूलम्स ने अपने रिसर्च में की और उन्होंने दो कंक्लूजन इस स्टडी के बाद दुनिया के सामने रखे. उनका फर्स्ट कंक्लूजन बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन था. ये जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में जो r डिस्टेंस पर मौजूद माने जा सकते हैं, दोनों चार्जेस के बीच में जो ये फोर्स है वो इन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है. In other words, if we will take that force as F, so F is directly proportional to the product of these two charges. All right, that was the first part of their study. So we can mark it as the equation 1 for our law derivation, right? And what about the second part of this? In the second part, he told us about that important relation between the distance and the force. तो उनकी स्टडी के हिसाब से force is inversely proportional to the distance square in between them. Alright? Hope ये टॉपिक भी आपको समझ में आता होगा. अगर हम इन दोनों स्टडी को एक ही फोर्स के बारे में दो डिफरेंट रिलेशंस हैं अगर हम इनको मिक्स कर देते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा रिलेशन हो जाता है F is directly proportional to the Q1 Q2 upon R square. Sign of proportionality we can remove from here. So F is equals to a constant will create K. It is equals to Q1 Q2 upon R square. All right. So that is about the Coulomb's law. All right. So Coulomb के लॉ को इस तरह से आप अपने सामने देख पा रहे हैं. ये जो K यहां पर एक कांस्टेंट क्रिएट हुआ है स्टूडेंट, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखें. इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी आप इसको कह सकते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. ऑलराइट. So that is
वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन विच इज सो यूजफुल। और इसकी वैल्यू भी अलग से अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो देख सकते हैं। इस k की वैल्यू आपके लिए k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द कैलकुलेशन, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ द k। ये k के लिए आपके पास फॉर्मूला मौजूद है। स्टूडेंट्स, इसकी जो न्यूमरल वैल्यू है जो आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए यूज करेंगे, के की एक न्यूमरल वैल्यू आप याद रखें, 9 इंटू 10⁻⁹ ऑलराइट। और इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज़ टू पावर -2। ऑलराइट, आई होप अगर ये सिचुएशन आपकी समझ में आती है के की दिस वैल्यू, सो यू कैन कीप इट इन द कूलम्स लॉ। So what was the Coulomb's law, students? Coulomb's law was F is equals to K Q1 Q2 upon R square. So in spite of K, I can put here value. This is 1/4 pi epsilon naught. So my formula is going to be 1/4 pi epsilon naught dot Q1 Q2 upon R square. So this is the calculation, and you can keep it in your notebook. This is the Coulomb's law in front of you. All right. अगर इस कूलम लॉ की स्टडी हम करें तो हम आसानी के साथ एफ को, यानी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या फोर्स ऑफ रिपल्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। एक क्वांटिटी यहां पर आप लोगों को जरूर नजर आती होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एप्सिलॉन नॉट, राइट। This epsilon naught, that is the quantity. This quantity is known as the permittivity of free space. Remember that. What does it mean? Permittivity of the free space means how a charge is able to move in the free space. किसी free space में किसी भी चार्ज को मूव होने का फ्रीडम कितना ज्यादा है, दिस इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दैट इज वेरी यूजफुल क्वांटिटी। आप इस क्वांटिटी को भी अपनी नजर में जरूर रखें, ये काफी यूजफुल साबित होगी, राइट। तो इस स्टडी में कूलम्स के पास स्टडी को करने के लिए कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जैसे फॉर एग्जांपल उनके पास एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि हाउ टू मेजर दिस स्मॉल काइंड ऑफ द फोर्स। सो रिमेंबर स्टूडेंट, इस फोर्स को नापने के लिए फिजिक्स की स्टडी में हम एक इंपॉर्टेंट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज द टॉर्जन बैलेंस। ओके, इट इज नोन एज द टॉर्जन बैलेंस। दैट इज अ वेरी यूजफुल apparatus which is available in the physics। इसके अलावा आप याद रखें, ये जो कूलम्स का लॉ है इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्जेस से मींस किसी भी चार्ज को आप एक पॉइंट के रूप में समझें, उसको एक बड़ी उसके अपने डायमेंशन को इग्नोर कर ही आप इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू विल कंसीडर समथिंग वेरी बिग, आप उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी डेप्थ, इन सब चीजों को एनालिसिस में डालेंगे तो इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। रिमेंबर दैट दैट इज आल्सो वेरी यूजफुल। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू आप याद रखें, दैट इज वेरी यूजफुल, 9 into 10⁻⁹ which is going to be very useful। and what about the epsilon naught? epsilon naught की वैल्यू भी स्टूडेंट आप लोगों के पास होनी चाहिए। न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय इसका मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द स्पेस एंड इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 9 into 10⁻⁻12। 9 into 10⁻⁻12 and its unit is coulomb square per newton, coulomb square per newton meter raised to power -2। so that is going to be the unit of it। इसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। आई होप कूलम के इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से फॉलो कर सके होंगे। बट द थिंग इज दैट as we know that most of the time we need to calculate the vector form of many concepts or many quantities, right? So सबसे पहले हम यहाँ कूलम के वेक्टर फॉर्म की स्टडी भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हमारा जो अगला टॉपिक है स्टूडेंट, वो कूलम्स के लॉ की वेक्टर फॉर्म को समझना है, राइट।
तो सभी स्टूडेंट इसके लिए होशियार रहें कि जो वेक्टर फॉर्म है वो आपको कंसेप्ट को आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले समझने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक Q1 चार्ज यहां मौजूद है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, दिस चार्ज इज Q1, और उससे कुछ दूरी पर हमारे पास यहां पर एक सेकंड चार्ज मौजूद है, दैट इज द Q2। ये दोनों चार्ज एक दूसरे के साथ r डिस्टेंस पर मौजूद हैं। सपोज करें Q1 चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है और Q2 चार्ज भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ऑब्वियसली दिस इज द सिचुएशन ऑफ द रिपल्शन आई एम पुटिंग ओवर हियर। तो रिपल्शन के फिनोमिना के हिसाब से Q1 चार्ज के ऊपर एक फोर्स रिपल्शन का Q2 के ऊपर और एक Q1 के ऊपर, दोनों के ऊपर काम करेंगे स्टूडेंट्स। ये दोनों फोर्स के डायरेक्शन जैसा आप देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर फोर्स को आप F21 डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज दिस फोर्स इज टूवर्ड्स द सेकेंड चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट वन, and the vector of this force is available to this side. All right, it will be from 1 to 2. Now what about the distance vector for both of these charges? दोनों चार्जेस के लिए डिस्टेंस वेक्टर की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर चार्ज के लिए हमारा डिस्टेंस वेक्टर इस साइड और इस चार्ज के लिए डिस्टेंस वेक्टर हमारा इस साइड काम करेंगे। अल्टीमेटली मैं इनको आर कैप 1 2 एंड आर कैप 2 1 से डिनोट कर सकता हूं। आई होप ये सिचुएशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस सिचुएशन को आप समझेंगे तो आप वेक्टर एनालिसिस में एक बात जो पहले से जानते हैं, आपको याद होगा कि अगर मुझे R12 कैप वेक्टर का स्ट्रक्चर लिखना है तो दैट इज बेसिकली द R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड वैल्यू ऑफ इट, राइट। सो वी कैन अप्लाई दैट ऑन इट और दोनों चार्ज हमको इस तरह से मिल जाएंगे। तो इस एनालिसिस में बहुत ही सिंपल सी बात है, R21 कैप और R12 कैप एक दूसरे के बराबर जरूर है, लेकिन इनके डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। अल्टीमेटली दोनों फोर्स में भी हमारे पास जो F21 वेक्टर है वो हमारे F12 वेक्टर के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से एक का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव हमें अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम इस सिचुएशन में दोनों फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग F12 वेक्टर। So what is going to be the value of it? F12 vector is going to be 1 upon 4 pi epsilon naught dot, alright, Q1 Q2 दोनों चार्ज के बीच की वैल्यू कूलम के लॉ के हिसाब से एंड R square. And I want to put the direction in it, that's why I am putting the distance vector, position vector R21 over here. What about the F12? This is going to be the same value. ऑलराइट 1 2 लिख चुके हैं हम, सॉरी 2 1 के साथ अभी हम शुरू करेंगे। तो F21 की अगर वैल्यू लेंगे सो दैट इज F21। हाउ मच दैट विल बी? इट विल बी द सेम वैल्यू, ओनली द displacement, I mean the direction vector will be the different. So what will be the value? 1 upon 4 pi epsilon naught dot Q1 Q2 upon R square, and that will be product with the R cap 1 2. Look at the difference. हमने सिर्फ डायरेक्शनल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के चेंज को करके दोनों ही वेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स तैयार किए हैं। So this is the vector form which is going to be very useful during the solution. आप याद रखें हमारे पास कूलम्स के लॉ के बारे में काफी सारे लिमिटेशंस हैं। इनमें सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि हमारे जो सारे चार्जेस हैं वो एट रेस्ट होने चाहिए, दोनों ही चार्जेस एट रेस्ट होने चाहिए। अगर कोई भी चार्ज मूव करता है तो वो कूलम्स के लॉ के बाहर चला जाता है। साथ ही साथ ऑल द चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस, ऑलराइट। हमारे चार्जेस जो हैं वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, छोटे छोटे टाइनी चार्जेस होने चाहिए जिनका अपना पर्सनल डायमेंशन हमको लगभग 0 मान लेना चाहिए। एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्मॉल डिस्टेंसेस। हाउ स्मॉल डिस्टेंसेस? एक लिमिट स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखें, ये लगभग 10 raised to power -15 ऑर्डर के डिस्टेंसेस के लिए
काम करते हैं। मींस न्यूक्लियर डिस्टेंसेस, अब हमारे जो डिस्टेंस है वो इससे कम होने चाहिए, तभी हम इसको वहां पर महसूस करेंगे। दैट इज ओनली द रीजन हमारे मैक्रो वर्ल्ड के अंदर हमको ये टाइनी फोर्स, कूलम फोर्सेस नजर नहीं आते। सो दैट्स ऑल इज अबाउट द कूलम्स फोर्स और कूलम्स लॉ। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा और उम्मीद करता हूं आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके अपने कंसेप्ट पर अच्छी ग्रिप बनाएंगे। रिमेंबर दैट दिस इज वन ऑफ द बेसिक लॉ विच इज क्वाइट यूजफुल इन द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा एंड वी विल मीट डेफिनेटली इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए कीप स्टडिंग हार्ड। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।